Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. Guys, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे what are the mistakes that one should avoid if they want to crack civil services examination. Before we start up with the lecture, let me tell you all, आपको सारे नोट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स. जो भी हम वीडियोस में डिस्कस करें, जो भी टॉपिक्स, उन सबके इफ़ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप में हम बहुत सारे क्विजेस और आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं. Then you can join the group and the link of the group is given in the description below. If you are unable to find the link, then just go to your telegram account. वहाँ पे सर्च बार पे अगर आप Simple Concepts UPSC के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, then you will be able to find our group. So having said that, let's start with today's discussion. So what are the mistakes that one should avoid if they want to crack Civil Services Examination 2021? So the very first thing is having the inferior complex that you're not from good college, have less marks, or started preparation late, or did not take the coachings of your optional is not related to your graduation. So it basically dilutes your confidence, which is very important for cracking any exam, not only UPSC. So forget about what you have achieved till now. DAF मेंस के फॉर्म में तो भर देना प्लीज. ओके, so only thing that matters now is how determined you are to crack this exam. You can easily find students from government schools at LBS NA, while those from India's most prestigious universities may end up in being Rajendra Nagar for many years, you know. तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है कि भाई मैंने कॉलेज अच्छे कॉलेज से नहीं किया या फिर प्रेस्टिजियस कॉलेज से नहीं किया. नो, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स, आप देखो, आप जो प्रीलिम्स आंसर करोगे वहां पे तो आपके कॉलेज का नाम नहीं आएगा. जहाँ से आप सिलेक्ट, मतलब आपका जो मेन एलिमिनेशन प्रोसेस है, जब आप निकलोगे उस मेंस में भी नहीं आएगा. बस जब आप डैफ फॉर्म भरते हो तब आएगा. वहां पे 1 or 2 क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू, बट दे विल, आई डोंट थिंक दे विल फोकस ऑन योर कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है. नो, दैट इट डजंट मैटर. वहां पे भी पर्सनैलिटी राउंड में भी आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, और ना कि आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में था भी या नहीं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको I can speak on days. Like, consistency is very important. Some aspirants study like for 15 hours on one day and they get frustrated. Human being is not a machine. ये तो आप दिमाग में पहले बिठा लो, है ना. We need rest, otherwise over efficiency too will eroded. So do not get frustrated after 2 or 3 spikes. Daily 8 to 10 study with efficiency is the right direction. In the right direction it will be more than enough for you. So no matter how much talented you are, how much hardworking you are, how much smart you are, if there is no consistency in your preparation for this exam, that is UPSC, or for any other exam for that matter, you will either fail or unnecessarily prolong this journey, making it stressful, burdensome and frustrating. So being consistent, that is being regular and steadfast, is what you are doing. Either making notes from newspapers or from books, writing answers daily, etc. So your problem range from self-doubt to underconfidence to lack of motivation throughout this journey. Once you start procrastinating and being irregular in your studies, undone tasks they pile up, creating huge mental burden. So this undermines confidence, as you cannot focus either on future tasks or on the older ones. Eventually you will start a new plan strategy to suit your present जो भी आपकी कंडीशन है, and this cycle will continue where victims are revisions, answer, essay writing, solving tests, and lastly failure in the actual exam. So if you study for 6 to 8 hours daily, try your best to stay consistent for next 1 year. The consistency will compensate everything, that is, you don't have to compare with those who are studying for 12 to 14 hours. You will reach their level sooner than you can imagine. You will have to just stay enough motivated to repeat tasks day after day, every day for 1 year. If you're following
secure initiative, follow it sincerely for 1 year. Some days you may write one answer or 5 answers, but it's fine. But never let a day without writing one answer. Do not. So one question I want to ask you: do you skip brushing teeth? No, right? Ask why. So if you have the habit of studying optional for 2 to 3 hours daily, do it regularly. You will be surprised that after 2 or 3 months, at the level of expertise you have gained in that optional subject. The biggest problem with your irregularity is in most of the things is you end up missing many tests in test series or postpone it again and again, citing silly excuses. You end up not writing the answers or essay again, justifying based on fancy background that you will never make your own notes because you have your own justification. This list can be endless. So if you want to succeed in exam or even in life, the best bet is to stay consistent in things you do. You will see progress in your intellect, in your confidence, in your attitude, and in your overall personality. So the secret to success beating talent without consistent. So the secret is the success is beating the talent without consistent hard work. So in our experience, we have seen many smart, talented people, they fail because of lack of consistency in many things in their hard work, in imposing their faith in one guide or guidance, in their own self-belief, in following one good source, etc. So if you introspect honestly, you will see for yourself that the reason for your failure most of the time is you. Blaming, complaining, winning is easy. It superficially rids you of self accountability, but in the long term, this attitude of blaming others and complaining, etc., it will make sure that you are being deprived of even smallest opportunity, and that might get later in your life to redeem yourself. So today is the day you will have to decide whether you want to lead a life of mediocrity and ordinariness, or by staying consistent, lead a life of fulfillment and happiness. Wake you and start doing matters and do it consistently. That is all I can say when it comes to inconsistency in preparation. So the next point which we want to focus is relying too much on internet. It may result in wasting your precious time. So internet is for gaining the edge, not losing the edge. It is double-edged sword. Even we do not realize when we reach from big picture to big boss. So this is different than that. Say some guys have habit of studying online, otherwise books cannot be replaced by any other sources. This we all know, right? Next point is spending too much time on Facebook and other time pass websites. So UPSC preparation does not demand isolation, but even after starting preparation, addiction to Facebook is very dangerous. I wouldn't say just Facebook. For now, you have Instagram, you have different websites, different applications like Telegram, etc. So similarly, IAS forum are these are some of the websites. For example, IAS forum or Insights on India. These are some of the websites wherein you can really utilize your time instead of going to Delhi and all those coaching institutes. Such website can they can be एक option हो सकता है आपके लिए for your preparation, just to add up with that, मतलब supplement करने के लिए. But if you अगर आप इन सारी websites पे जैसे कि Facebook हो गया, सोशल मीडिया पे जाके अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, then it is certainly not acceptable. वो आपको आपके जर्नी में सस्टेन नहीं करेगा in the long run. Next mistake which most of the people do is reading from too many sources for single topic. So you don't need to love any topic and show loyalty towards the whole syllabus, and all the topics have their own importance according to marks. So we are here to crack the exam, so there is need to cover the whole syllabus comprehensively. और ये ना हो कि बस आप syllabus को पूरा का पूरा आप रट ही डालो every word to word books का. That is not necessary if you are preparing for civil services. Next point is reading from too many sources and not really compiling them. So if you are reading from too many sources, you need to compile those notes from all the sources. Like you are studying from many books for history like Bipin Chandra, Spectrum, Grover, etc. Then you can revise from, or you can't revise from all of those books during the exam time, right? So there is a need कि आप उन सारे notes को अच्छे से compile करें, एक ही आप ऐसा सोच रखें जहाँ पे आपको exam time में वो सारे notes आप compile
होंगे वहां पे और आप वो अच्छे से एक बारी में आप रीड कर सको। ये ना हो कि एग्जाम के वक्त आपको इधर उधर आप सारे बुक्स को सर्च कर रहे हो, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच सेज नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। So newspaper reading is at most important activity. Newspaper covers paper 2 and paper 3 completely, and these days current affairs questions in prelims also. So you better need to make your own notes online or वहाँ पे आप अच्छे से जिस्ट बना के आप लिख सको। बस मेक श्योर दैट यू डोंट टेक आउट दोज न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड देन स्टिक इट ऑन सम बुक। ये मैं आपको बात एक और एम्फोसाइज नहीं कर सकती इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैं कहूँगी ना के बराबर बच्चे होते हैं, जो वापस से उन जो कटिंग आउट्स होते हैं उनके वहाँ पे उनको जाकर के वापस से उनको रट ले, वो बहुत कम लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो कटिंग्स होते हैं उनको देख के यार मतलब ओपन करने का मन नहीं करता मोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, कि आप पूरा का पूरा आर्टिकल आप कहाँ पढ़ोगे एग्जाम वक्त पे, आपको 10 मिनट है। सो यू नीड टू आपको 10 जो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे उनका जिस्ट आपको 10 लाइनों में चाहिए होता है। ये ना हो कि वहां पे 500-600 लाइंस के आर्टिकल्स वहां पे आपने स्टिक कर रखे हो। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहे अपने नोट्स फॉर्मिंग में, जो आप नोट्स बनाते हो उनमें, एंड मेक श्योर यू जस्ट राइट द जिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स दैट यू आर राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स, सो दैट जब आप एग्जाम लिखने आपके बैठोगे तब वहां पे आपको वो कंफ्यूज ना रहो आप, है ना, जब व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट which says purchasing too many books for single subjects, but believe me it does more harm than good. Why? Because जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकोगे आप डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट इज वेस्टिंग टाइम which you could have used for reading other topics. It takes more time to read new books. सेकेंड इज मोर बुक्स, मतलब मोर फ्रस्ट्रेशन, आप पे के बहुत ज्यादा आप पे फ्रस्ट्रेशन आएगा। थर्ड इज मोर मनी फ्रॉम होम, मोर प्रेशर ऑन यू, कि आप घर पे भी अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास नहीं होगी, तो आप घर पे ज्यादा पैसों के लिए डिमांड करोगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती, राइट। सो दैट अगेन वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। फोर्थ वन इज प्रॉब्लम इन रिवाइजिंग एट द लास्ट मोमेंट, एज इट इज इजी टू रीड सेम बुक विच यू हैव रेड मेनी टाइम्स earlier than many books at once. एक ही अगर किताब हो जिसको आप बार बार आपने रीड किया हो तो वो रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा उसकी मदद रहेगी, ना कि बहुत सारी किताबों को आपने एक ही बार अगर रटा हो तो। Next point is joining too many coaching institutes. So coaching walas, they cannot really help you to crack this exam after an extent. When we go in fair or famous market, vendors keep asking, sir ye le lo. Coaching institutes print pamphlets and they make more attractive advertisements. 1000 में भी 1000 में या 1000 में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी। we are very innocent aspirants and feeling problem in science या फिर tech like topic, having desires to fulfill parents dream, we get into such traps and waste both our money and time and energy at the same time. So इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे जाना आपको जरूरत नहीं है। वॉट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट आप सेल्फ स्टडी कितनी ज्यादा कंसिस्टेंटली आप करते हो, कितना ज्यादा वक्त आप खुद को प्रिपरेशन में दे रहे हो, खुद के ओन वर्ड्स में आप अपने नोट्स लिख रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गोइंग फॉर टू मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप ऑप्शनल के लिए जा रहे हो, GS1 के लिए एक अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट, GS2 के लिए एक अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट, एथिक्स के लिए भाई मैं किसी और ही इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ कोचिंग के लिए। सो डोंट मेक दैट, ऐसा ना हो कि आप कोचिंग्स में जाके यू स्पेंड योर एंटायर जो आपका वक्त है इंपॉर्टेंट लाइक 12-13 आवर्स, वो आप बस कोचिंग में ही वेस्ट कर लो एंड यू डोंट एंड अप गेटिंग टाइम फॉर योर ओन सेल्फ स्टडी। डोंट मेक दैट हैपन, दैट विल बी द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू विल एवर डू विथ योर सेल्फ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि नॉट डूइंग द आंसर राइटिंग। सो नो बुक और कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन गिव यू रेडीमेड आंसर्स ऑफ UPSC क्वेश्चंस। दे आर डायनामिक एंड एनालिटिकल। स्टूडेंट्स हु ऑलवेज फील सब पढ़ा है यार पर याद नहीं रहता विल ऑल्सो फाइंड इट हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। So the more you practice such questions, the more comfortable you will be in writing the answers on the day one. Okay.
So the next point is, like I always say, not having plan B while preparing for civil services exam. So when aspirants, like they start preparing for this exam, in the first year they say first and only choice is IAS, no IPS, IRS and rest. In the second year UPSC की कोई भी मिल जाए यार, मतलब कोई भी सीट, कोई भी जॉब मिल जाए. And in the third year, not they are not being able to bear that पेरेंट्स फ्रॉम प्रेशर. इंडिया लाइक अरे भाई कोई भी जॉब मिल जाए, एसएससी टाइप की भी हो गया तो भी चलेगा. सो दिस सिचुएशन इज कॉमन इन द मिडिल क्लास फैमिलीज एस्पिरेंट्स. सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर प्लान बी? इफ नॉट यूपीएससी, इट हेल्प्स अस टू थ्रो डाउन द प्रेशर. आपको जब आप प्रिपेयर करोगे सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ठीक है, अगर वो एडेड बर्डन आप पे नहीं होगा. ऑफकोर्स अब कुछ लोग होते हैं कि वो जानबूझ के ऑप्शन भी नहीं रखते, बिकॉज दे वांट टू गेट देम सेल्फ इन दैट प्रेशर जोन. उनको लगता है कि जब एक्स्ट्रा प्रेशर जब मेरे ऊपर आएगा तब मैं डेडिकेटेडली पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी. इट इज एज सिमिलर एज आप जब जिम में जाते हो तो उनको लगता है कि जब वो फीस पेमेंट करेंगे, लाइक मतलब एडवांस पेमेंट जब वो फीस में करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 महीने की वगैरह वो फीस पे करते हैं, सो दैट उनको लगता है कि भाई एक मोटिवेशन रहेगा हमें जिम में जाने के लिए, बिकॉज वी हैव पेड द होल लॉन्ग फीस. बट ऐसा कभी भी नहीं होता. बहुत कम लोग होते हैं जो ये प्रिंसिपल सस्टेन कर पाते हैं. सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ प्लान बी. जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तब आपके दिमाग में ये ना हो कि मेरे लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. सो वो स्ट्रेस लेवल आपके पढ़ाई में, इट इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड. वो प्रेशर आपको लाना आपके एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं है आपके लिए. सो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तब आप स्ट्रेस फ्री रहो, एंड दिस कैन बी अचीव्ड नॉट ओनली बाय हैविंग प्लान बी, आई वुड से, बट हाँ, प्लान बी होना एक एक अच्छा रहेगा आपके लिए टू हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ while you're preparing for civils. Next mistake which most of the new aspirants do is wasting too much time on making notes. So notes making is very important, because without notes or compiling the material, we will face a lot of difficulties near exam time. But we have to make notes discreetly. Like Lakshmikant of Polity does not need to take notes, or Spectrum for that matter. These books don't need to take notes, because वो एक तरह अपने में ही वो एक नोट्स के जैसे हैं. ऑफकोर्स लक्ष्मीकांत को थोड़े बहुत नोट्स लेना भी जरूरी है. सो इट जस्ट नीड्स द हाईलाइटिंग ऑफ फ्यू पॉइंट्स विथ मार्कर. सम एस्पिरेंट्स टेंड टू मेक नोट्स ऑफ दैट बुक लाइन बाय लाइन, एंड इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे जैसे कि द, दैट, दिस, टू. सो डोंट मेक कि आपके नोट्स ऐसे हो कि आप राजेंद्र नगर के जो गलीज है वहां पे आप बेच सकोगे. नो, डोंट मेक सच नोट्स. मेक श्योर कि आप नोट्स ऐसे बनाओ कि जब आप खुद पढ़ो तो वो आपको आसानी से समझ आए. किसी और को आपके नोट्स समझ आने का ये पर्पस नहीं है नोट्स बनाने का. नोट्स बनाने का पर्पस बस यही है कि आपको अपने नोट्स खुद समझ आए. दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल. The next mistake which most of the aspirants do is isolating yourself from external words and become aesthetic. Some people think कि आपको बस अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ेंगे तो IAS बन जाएंगे. So this kind of people have more tendency to go in depression. So do not isolate yourself. It is just an exam. You have to make some important people in your life with whom you can share everything, and UPSC की frustration भी निकाल सको. And become aesthetic is some people immerse so much into study that they start eating less and start taking bath once in 3 days to save time, and disturbing the other studies with that with that kind of attitude. So UPSC never asks you to stop taking baths. You keep your surrounding neat and clean. It gives you positive vibes also, right? So the next mistake which most of the people do is not preparing according to the syllabus, and you tend to go directionless. So how can we reach the destination without having map in our hands? So always have the syllabus. We have to read every topic according to the syllabus, so that we can utilize our time efficiently, और बहुत ही fruitfully हम अपना time utilize करें. Next mistake which most of the aspirants do is doing PhD on any topic. So strong command on few topics will not help to crack UPSC exam. But हाँ, कुछ topics ऐसे हैं, for example fundamental rights, जो आपको extensively learn करने हैं, because most of the question पूछने की जो probability है इन topics पे ज़्यादा आती है और in depth आते हैं question. But it takes time for other topic, and also cost benefit of this is very poor. Right to equality for other topics, that is different thing, that everyone has their own strategy, like making some topics strong and just go through other topics, but doing PhD and all together is it's altogether different, which will not help you in the long run.
Next mistake is not doing enough emphasis on essay. So first we ignore the essay completely and later we rant on citing its worth in the mains exam. Essay preparation, it cannot be isolated because हमें पता है कितना weightage होता है उनको. So while reading newspaper, observe the writing style of famous writers and note down some of the good points and lines. अगर आप लिखोगे तो in itself वो आपको essay preparation के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. Next is counting hours while preparing, while you are studying. One thing you have to remember, you are not doing some job or something. हाँ, आपने job छोड़ा होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, बट आप प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तो दैट यू आर नॉट डूइंग अ जॉब इन इटसेल्फ. लिटरली पीपल काउंट ऑन आवर्स फॉर विच दे हैव स्टडीड, हैविंग ऑलमोस्ट नील एफिशिएंसी व्हाइल देयर प्रिपरेशन. Next point is daydreaming what you will do after becoming IAS. So this is the very important point I would like to focus on. Having dream is good thing, but thinking about scenarios of after dream is fulfilled and that that accompanied by wasting time activity is direct autonomous in like I have said in my previous video. It is always said in our Gita as well कि आप बस अपना कर्म करो. You don't have to think about the results or after effects of it. जब आप ये सब के बारे में जब आप सोचते हो तो वो प्रिपरेशन के टाइम आपको जो कंसिस्टेंसी होगी आपकी या फिर डेडिकेशन होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन फोकस होगा, वो आपका बहुत ज़्यादा हिल जाएगा. यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय दैट एंटायर जर्नी. आप हिस्ट्री एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप पॉलिटिकल साइंस एंजॉय नहीं कर पाओगे इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दी आफ्टर इफेक्ट्स. आप रिजल्ट के बारे में ही अगर आप सोचो तो ड्रीम बस आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप 5 मिनट डे ड्रीम करो तो इट शुड चार्ज फॉर द रेस्ट ऑफ योर 8 आवर्स. जब आप पढ़ाई करोगे वो आपको चार्ज अप करना चाहिए, ना कि आप बस मतलब आप सारे का पूरा दिन आप डे ड्रीम ही करने बैठो. दैट शुड नॉट हैपन. Next point is watching too many videos just to convince yourself that I'm studying, but to find later that those videos are of no use. So people see the syllabus related videos all the time, convincing their minds that हाँ पढ़ाई हो रही है, and how they tell that to be watching how they will be to watch 20 videos of 1914 World War for this topic. Solution is to download them and just see the important videos. You don't have to keep on seeing all the YouTube videos. इतने सारे YouTube पे videos है यार related to UPSC. You cannot keep on watching every one of them. Just select करो कि कौन कौन से, और हाँ आप ये ऐसे वाले videos आप देख सकते हो जब आप कुछ और काम कर रहे हो, जैसे कि आप खाना खा रहे हो. Then you can watch such videos. आप filter out तब ऐसे वक्त पे आप filter out कर सकते हो जो unimportant videos है उनको. Next, let's go on to our next point now. Next point is not making micro notes. So making micro notes for revision is very necessary. UPSC preparation is like horse latitude, so throw your horses means extra things of fodder material not important for exam. You have to take योर शिप फर्दर. आपको वो माइक्रो नोट्स बनाने में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब आप एग्जाम हॉल के आप बाहर बैठे हो 10 मिनट में आपको अगर कोई टॉपिक रिवाइज करना हो, मेक श्योर दैट यू हैव योर माइक्रो नोट्स हैंडी. नेक्स्ट मिस्टेक इज रीडिंग एवरी बुक मैडली फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज. सो ऑलवेज ट्राई टू गो सिलेबस वाइज. जैसे कि मैंने आपको कहा है, आप अपने डेस्टिनेशन के पास मैप के बिना आप नहीं पहुंच सकते. फॉर दैट कीप योर सिलेबस हैंडी, बट डू नॉट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी रीडिंग लाइक सम पीपल सजेस्ट इंडिया आफ्टर गांधी. सो सर्टनली दैट बुक इज गुड एंड इट इज बट वहां पे आपको टाइम का जो रेशो होगा, टाइम बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट का रेशो वो बहुत ज्यादा कम है. सर्टनली दैट इज अ गुड बुक प्रोवाइडेड यू हैव योर सफिशिएंट टाइम, बट दैट बुक इज नॉट लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, जहां पे आपको कंसाइज वे में बस नोट्स के यूपीएससी के इंपॉर्टेंट आपको कोई नोट्स ऐसे हो, वैसे वाला वो बुक नहीं है, राइट. सो हैविंग सेड दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग ऑल द टाइम बट नॉट एग्जीक्यूटिंग इट. मैं समझती हूँ आप में से बहुत ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप रिलेट कर पाओगे कि आप टाइम टेबल आफ्टर टाइम टेबल आप फॉलो आप राइट डाउन करते हो, आप लिखते हो कि मैं 12-12 घंटे या फिर 14 घंटे आज के दिन पढ़ूंगा, बट बाय द एंड ऑफ द इवनिंग जब तक होती है आपको भी पता होता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट आप रहे हो जब आप एग्जाम उस पर्टिकुलर स्टडी टेबल पे आप बैठे हो तब. So planning all the time and not executing it. I will read this that this is my schedule. It will cover things till last of the month. These things are pretty common. First, make realistic plan for that matter and do that. And that do not go by famous, even after joining the services.
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, ये आपको आपके दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना होगा। आप जब आप अपना टाइम टेबल बनाओ, मेक श्योर आप प्रैक्टिकल बनाओ। ऐसा नहीं हो कि मैं आज 18 घंटे पढ़ूंगा, वैसे तो नहीं होता, राइट। शुरुआत जब आप कर रहे हो, जैसे कि मैं कहूंगी बिगिनर्स जो होते हैं, स्टार्ट विथ 1 आवर और 2 आवर्स अ डे, फूल योर ब्रेन कि आप आज मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ, तो 2 दिन में 2 घंटे ही पढ़ूंगी, उसके बाद मैं 3 घंटे पढ़ूंगी, उसके बाद 4 घंटे। डोंट मेक श्योर कि पहले ही दिन आपने 15 घंटे का टाइम टेबल बनाया, उस दिन तो आप 15 घंटे अच्छे से पढ़ लोगे, बट नेक्स्ट डे क्या वही आप क्या कंसिस्टेंसी आप रख पाओगे? आंसर इज नो, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, एक अचीवेबल गोल बनाओ, और जब आप वो गोल मतलब आप जो भी हो सकता है कि आप कम टाइम दो पढ़ाई के लिए, बट जो भी आप वक्त दो, 5 घंटे 6 घंटे जो भी हो, बट मेक श्योर वो आप डेडिकेटेड रहो उस टाइम में। बिलीव मी, जो इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होंगे कि हाँ मैंने, जब आप वो वाली फीलिंग आएगी ना आपको कि हाँ मैंने 5-6 घंटे क्यों ना हो मैंने वो अचीव किया है, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स बेस्ट फीलिंग रहेगी आपको व्हेन यू एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको समझेगा कि जो मैंने खुद को कमिटमेंट्स दी थी वो मैंने पूरी कर ली है। सो स्टार्ट विद दैट, आप प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अलग सा ही टाइम टेबल बनाओ 18 घंटों का, डोंट डू दैट मिस्टेक, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, बिगिनर्स हैं उनके लिए। And here comes the last point, having too many friends and tendency to engage in relationships. अब जब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे कि आप राजेंद्र नगर में जाते हो, घर से दूर जाते हो सकता है कि आपको वो लोनलीनेस फील हो, आपको बहुत अलोन फील हो जाए, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एंगेज रखो बस ऐसे रिलेशनशिप्स में जाके, या फिर फ्रेंडशिप, नई फ्रेंडशिप, दोस्त बना के। हाँ, दोस्त होना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी ना हो, बट मेक श्योर वो लोनलीनेस ना आपको ईट अप ना करे, आपका टाइम जो आपका वक्त है वो बर्बाद ना करे वो ऐसे फ्रेंडशिप्स या फिर ऐसे रिलेशनशिप्स। सो जस्ट मेक श्योर क्या रीजन है आपने आपके खुद से आप दूर आए हो, आपके घर से दूर आए हो, या फिर आपने, हो सकता है आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जॉब छोड़ी हो। मोस्ट ऑफ द लोग कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते ही हैं वो जब वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। हो सकता है वो घर पे हो तो जॉब छोड़ रहे होते, या फिर दोस्तों से दूर रहते हो। तो डोंट मेक श्योर कि वो जो आपने जो भी सेक्रीफाइसेस दिए हैं, इन सारी चीजों में वो सैक्रिफाइसेस वेस्ट ना हो, जैसे कि यू एंगेज योर सेल्फ इन रिलेशनशिप्स, या फिर यू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन मेकिंग फ्रेंड्स। लोनलीनेस एक हद तक ठीक है, बट मेक श्योर यू यूटिलाइज द एंटायर टाइम इन आप पढ़ाई पे ही आप फोकस करो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप इन सारी चीजों पे वक्त वेस्ट करो। मैं फिर से कहूंगी कि दिस पॉइंट इज नॉट कॉन्ट्रोडिक्टिंग टू मेरे प्रीवियस वाला पॉइंट, जहां पे मैंने आपको कहा था कि आपको दोस्त बनाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको घर से ही बाहर निकलना नहीं है, हाँ, बट वक्त रखो कि आप अपना ना पूरा, वो कहते हैं ना उसको, कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो। किस वक्त पे मैं क्या करूंगा, किस टाइम पे मैं सोशल मीडिया में यूटिलाइज करूंगी या फिर करूंगा, किस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा सोशल रहूंगी या फिर रहूंगा। दैट इफ यू कैन अचीव दैट बैलेंस इन योर लाइफ, देन ऑफ कोर्स सक्सेस इज ऑल योर्स। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे देन डू हिट द लाइक बटन, इससे हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और अच्छे से अच्छे वीडियोस और कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। आपके अगर कोई इंपॉर्टेंट सुझाव हो, वैल्यूएबल कमेंट्स हो, तो डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अगर सिंपल कॉन्सेप्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हो देन डू हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन हिट करिएगा, वहां पे नोटिफिकेशन बेल आएगा, वहां पे भी क्लिक करिएगा, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी पुट एनी वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आपको इन सारे डिस्कशंस में अगर आपको एंगेज रहना है तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय।